جی میری وعلیکم طرف السلام۔ سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ اور جو لوگ ہاں خیر سن ٹھیک رہے ہے، ہیں، ویسے یہاں میں خاص طور پر اگر کوئی رمضان کی عید ہوتی تو میں اس کو مبارکباد بھی کہتا اور اس کی مبارکباد بھی لیتا، لیکن میرے نزدیک میں اس عید کا خاص طور پر بائیکاٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کلچر کو فروغ دینا چاہتا ہوں کہ یہ عید نہیں ہے، کسی بھی بنیاد پر نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے مطابق نہ غیر مسلمانوں کے مطابق۔ اس بالکل عید صحیح۔ میں جو بھی ہوتا ہے میں اس کے سراسر اور سخت خلاف ہوں، سخت خلاف ہوں۔ تو اس طرح سے نہ میں کسی کو اس عید پر مبارکباد دوں گا اور نہ کسی کی مبارکباد لوں گا۔ اس معاملے میں میرا موقف بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے۔ اگر آپ کسی اور موقع پر مجھے کسی بھی قسم کی مسلمانوں کی کسی خوشی کے موقع پر آپ جو ہے مجھے مبارکباد دیں گے، میں ضرور زہ نصیب یہ جو ہے ان کی مبارکباد قبول کروں گا، لیکن اس موقع پر میں نہ کسی کی مبارکباد لوں گا نہ کسی کو مبارکباد دوں گا، یہ میرا موقف ہے۔ ہم واک اور ابھیویکتی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے پرجوش سمرتھن کرتے ہیں۔ اداہرنوں چھویوں اور سندربھوں سے ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی گتیویدھیوں کو بڑھاوا یا پروتساہت نہیں کرتا ہے۔ ہمارا مقصد کیول سماج جاگرک کرنا ہے۔ جے ہند دوستوں، نہ جانے آج کل کون سی شخصیت ایسی ہے جو ایکس مسلم موومنٹ کو ختم کرنے کی جی توڑ کوشش کر رہی ہے۔ کبھی ہماری ویڈیو کو بین کر دیا جاتا ہے، کبھی اسٹرائک دے دی جاتی ہے، کبھی ویڈیو کو لمیٹڈ کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بہت سے ایکس مسلموں کے چینل تک بین کر دیے گئے ہیں۔ ہماری بہت سی ویڈیو کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے یا پھر ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، میری اتنی ساری ویڈیو کو لمیٹڈ کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ ان ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو گائیڈ لائن کو فالو نہ کرتا ہو۔ اسی لیے ان ساری ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے، ان ویڈیو کو بھی لمیٹڈ کر دیا جا رہا ہے جن پر اچھے خاصے ویوز ہیں، اور ان ویڈیو پر کوئی رپورٹ بھی نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو سال بھر پہلے اپلوڈ کیا گیا تھا، اس پر اچھے خاصے ویوز بھی تھے، مگر اسے پچھلے ہفتے لمیٹڈ کر دیا گیا۔ اس ویڈیو میں سچ والا صاحب نے عید پر بولتے ہوئے قرآن کی کئی آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ سچ والا جی نے کئی سوال اسلامک اسکالروں کے سامنے رکھے ہیں، پر کسی بھی پرکار کی کوئی توہین والی بات نہیں کی ہے۔ اب آپ لوگ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور کمنٹ کر کے بتائیے پوری ویڈیو میں غلط کیا ہے، اور ایسی ویڈیو کو لمیٹڈ کیٹیگری میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم قرآن کی کچھ آیتیں جن کو ہمارے علماء بدستور جو ہے پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس میں قرآن قربانی کا ذکر ہے، تو ہم وہ آیتیں دنیا کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں ایکچوئل لکھا کیا ہے، اور ہمارے علماء اس کو کس طرح سے ٹویسٹ کرتے کیا سے کیا معنی لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عبدالحمید صاحب آپ ایسا کیجئے، یہ دیکھیے، یہ سورہ الکوثر کی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 2، 108 کی آیت نمبر 2۔ اچھا اسٹرام پائلٹ جی، آپ کی توجہ چاہوں گا، اس میں کیا لکھا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اچھا اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تم کو الکوثر عطا کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا الکوثر کیا ہے؟ اس میں بڑے جھگڑے ہیں سب نے، جو بھی ہوگا کوثر جو بھی ہوگا ٹھیک ہے، بھی انہیں جو ہے ہم نے تم کو الکوثر عطا کیا۔ تو چونکہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا تو اب تم کو کیا کرنا ہے؟ یعنی شکرانے کے طور پر، کیونکہ آپ نے ایک چیز کسی کو دی تو اب وہ پلٹا کر جو ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو کیا کرنا ہے تم کو شکرانے کے طور پر؟ فصلی، یعنی بس تم کیا کرو؟ صلات، یعنی نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ قرآن کا لکھنے والا یہ بات کس انداز میں کہہ رہا ہے؟ آپ ذرا ان لفظوں پر غور کریں، اور ہمارے سارے کے سارے علماء ونحر کا ترجمہ قربانی کرو کرتے ہیں۔ کس لحاظ سے بھائی؟ اور پھر یہ انداز دیکھیے کہ نماز تو یہ روزانہ 5 بار پڑھیں گے، اور ایک ہی آیت میں جس لفظ کو مطلب بتایا گیا ہے کہ پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، اور قربانی سال میں ایک بار کرنا، یہ تقسیم آ کر کس نے کی؟ اگر تم نماز صلی کا مطلب نماز لے رہے ہو، اور انحر کا مطلب جو ہے اگر قربانی لے رہے ہو، تو یا تو آپ جو ہے نماز کو بھی 5 بار پڑھو اور قربانی 5 بار دو، یا پھر نماز بھی
एक बार करो और कुर्बानी भी एक बार करो। ये कुर्बानी एक बार करना है और जो है नमाज 5 बार पढ़ना है, कुरान में कहाँ है? और ये इनहर का मतलब कुर्बानी आखिर किस बुनियाद पर है भाई? किस बुनियाद पर? चलो जी, जी जनाब जी। नहर करना तो ऊंट को जो वो ज़बह किया जाता है उसको कहा जाता है ना, जी हाँ, जी हाँ, ऊंट को। जी तो बात ये है कि ये मक्की सूरत है, जी ठीक है। जी। जब ये मक्की सूरत है तो वहां पे तो अहकाम नाज़िल ही नहीं हुआ कोई। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके उसको कंटिन्यूएशन में हम देखते भी नहीं है कि मुसलमान जो है वहाँ ईद मना रहे हों और कुर्बानियां कर रहे हों। जी हाँ, हमें कोई इस तरह का मक्का के दौर में नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, पहले आप इनसे ये पूछें कि पहली दफा जो ईद मनाई गई वो कब मनाई गई थी? जी हाँ, जी हाँ, और जो कुर्बानी की गई तो वो कौन से साल में की गई थी? जी हाँ, ये जो अभी इन्होंने कहा, बरतानवी ने, अरबों ने ये सिस्टम निकाला हुआ था कि अगर आप हज पे आओगे तो साथ में इस श्राइन के लिए कुछ साथ में नजर और न्याज कुछ साथ चीज लेकर आओगे। जी। उसमें से एक ये है कि वो कुछ जानवर लेकर आएंगे तो जो उस स्थान पे उसको ज़बह करेंगे, ठीक है, और उनके गुनाहों का वो जो कफारा है वो इससे पूरा हो जाएगा। अब इस तरह के स्थान जो होते हैं वहां पे जो इबादत गुजार या जो क्या उनको बोलते हैं, रखवाले या निगरान जो होते हैं, वो हर जगह इस तरह की, जी मतवली, जो इस तरह की रिचुअल्स वो बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई किस्म के रिचुअल्स बन जाते हैं। उनमें से एक रिचुअल ये भी था कि वहां पे जानवर को ज़बह करना है। जी। लेकिन मसला थोड़ा सा उसमें ये आ जाता है कि कुछ रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं कि अब ये जो उनको बताया गया है कि तुम ये जो इब्राहिम का मकाम उन्होंने वहां पे बनाया और इब्राहिम यहाँ पे आया था, ये जो कहानी है इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि वो उन लोगों को 2500 साल से, क्योंकि प्रॉफिट और जो सपोजली ये जो बंदा था इब्राहिम, ये जो भी कैरेक्टर है जिसको बाद में बनाया गया या रेट्रोस्पेक्टिवली उसको किसी वजह से ऐड किया गया हिस्ट्री के अंदर, ये बताने के लिए कि नहीं हमारा एंसेस्टर तो बाइबल से आया था और ये मजहब हमने इजिप्ट से नहीं लिया। कुरान में जितनी भी बातें हैं सब की सब कहीं ना कहीं से सुनी हुई बातें हैं जो चोरी करके लिखी गई हैं। कुरान में दुनिया भर की बोंगियां हैं। हालांकि हम यहूदी मजहब में देखें, यहूदी मजहब में देखें तो ये जो रिलीजन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अल्फाज है, ये यूं लगता है कि उन्होंने इजिप्ट से लिया है जूस ने, लेकिन फॉर सम रीजन अपना कनेक्शन वो या और मिस्र वालों ने यहूदियों के ऊपर हुकूमत भी की है इनके अपने इलाके में। तो अब ये किसी वजह से ये तस्लीम नहीं करना चाहते कि हमारा खुदा तुम्हारा खुदा है, क्योंकि ये जो आमून खुदा था, आमून आप देखेंगे कि वो भी जब दुआ करते हैं तो आमीन बोलते हैं, दुआ के एंड में खुदा का नाम पुकारते हैं। ईसाई लोग भी पुकारते हैं, मुसलमान भी पुकारते हैं। सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो उसके बाद आमीन ही बोलेंगे, आमीन बोलते हैं ना, आमीन अंग्रेजी में आमन बोलते हैं, यहूदी भी उसको बोलते हैं। तो ये जो आमन था ये एक्चुअली सुप्रीम गॉड था जो दूसरे गॉड्स के ऊपर गॉड था, और ये इजिप्ट में इसको माना जाता था। लेकिन बाद में इन लोगों ने ये स्टोरी घड़ी कि नहीं, हमारा जो एंसेस्टर है, हमारे जो खुदा का तस्वर है, ये इजिप्ट से नहीं आया। और सम पॉलिटिकल रीजन इन्होंने बाद में कहा कि हमारा जो इब्राहिम था वो तो बाइबल से आया था। ओके, अब बाइबल के अंदर हमें नजर आता है कि वहां पे इस तरीके से एक सुप्रीम गॉड जिस तरह इजिप्ट में माना जाता था ये तस्वर नहीं पाया जाता था। तो इन्होंने कहा कि हमारा एंसेस्टर वहां से आया था और उसने हमें ये सिखाया था और एक गॉड का तस्वर हम वहां से लेकर आए हैं। अब मसला ये कि प्रॉफिट मोहम्मद और लोगों को इस बात इनको, चूंकि इनको तारीख नहीं बताई जाती, तारीख इसलिए नहीं बताई जाती कि लोगों के ज़हन में शुबहात पैदा ना हो जाए, तो बात कुरान की तरह गोल मोल की जाती है। आप ये देखें कई लोग शॉक हो जाते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको मालूम है कि इब्राहिम और प्रॉफिट मोहम्मद के दरमियान का कितना अरसा है? वो कहते हैं नहीं मालूम। जब मैं पूछता हूँ कि मूसा और हजरत मोहम्मद के दरमियान का कितना फासला है,
कितना टाइम पीरियड है, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं पता। अब जी आप अंदाजा लगाइए कि प्रॉफिट मोहम्मद और इब्राहिम के दरमियान 2500 साल का फासला है, जी मुद्दत। हाँ जी हाँ अब 2500 साल में सहरा में, उस जमाने में जबकि कम्युनिकेशन और मोबिलिटी ज्यादा नहीं थी लोगों की, आप ये मुझे बताएं कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इब्राहिम की औलाद हैं, नंबर एक। 2500 साल बाद तो एक बंदा क्लेम कर रहा है कि हम इब्राहिम की औलाद है। एंड सेकेंडली वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो काबा है, जिसका तारीख में हमारा कोई हवाला नहीं मिलता और बाद की ये चीज पैदा की हुई है, आप उसको जोड़ रहे हैं कि ये भी इब्राहिम ने बनाया था। कितनी अब्सर्ड इसके ये बात है। 2500 साल आज तक लोगों को अपने 500 साल 600 साल से ऊपर ज्यादा मालूम नहीं होता, वो भी आज के दौर में, कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे। तो जाके एक ऐसी लैंडस्केप में लोग रह रहे हैं जो टेम्पररी है, जिसके रिसोर्सेज जो हैं वो इतने एनाफ नहीं है कि लोग वहां परमानेंट रह सके। अब वो लोग जो दर बदर घूम रहे हैं, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इब्राहिम हमारा जो है वाला था। ये कितनी अपसेट बात है सच वाले जी। जी हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। मोमिनों से मुल्ला और मौलाना कुछ भी अनाप शनाप बक देंगे, सारे के सारे मोमिन उसे आंख बंद करके मान लेंगे, अपनी अक्ल से नहीं सोचेंगे कि ये सही है या गलत है। जी अच्छा, ये सूरा अल कौसर में जो बात कही गई है ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद है, और नहर का मतलब ये है ही नहीं जिस तरह से हमारे उलमा वो लेते हैं और लोगों पर जो है थोपते हैं। तो ये सूरा अल कौसर की आयत नंबर 2 में वो बात है ही नहीं जो कि मुसलमान गली गली कूचा कूचा घर घर ये बकरों के गले काट कर उनके नरखरों से खून बहाते हैं। ये बात इसमें बिल्कुल भी नहीं आई है। तो हो गई बात। अब जो है हम इसके और पीछे चलते हैं, सूरह साफ़ात पर आते हैं। सूरह सचवाले जी साफ़ात मार्कोनी जो है, साहब से बात कर लेंगे फिर चलेंगे। जी मालकुनी साहब फरमाइए। आदाब। ईद मुबारक मार्कोनी जी साहब, सलाम वालेकुम। जी 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 जनाब। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरी वालेकुम तरफ सलाम। से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो लोग हाँ खैर सुन ठीक रहे है। हैं, वैसे यहाँ मैं ख़ास तौर पर अगर कोई रमज़ान की ईद होती तो मैं उसको मुबारकबाद भी कहता और उसकी मुबारकबाद भी लेता, लेकिन मेरे नज़दीक मैं इस ईद का ख़ास तौर पर बॉयकॉट करना चाहता हूँ। मैं ये कल्चर को फ़रोग़ देना चाहता हूँ कि ये ईद नहीं है, किसी भी बुनियाद पर नहीं है, ना मुसलमानों के मुताबिक, ना गैर मुसलमानों के मुताबिक। इस बिल्कुल ईद सही। में जो भी होता है मैं उसके सरासर और सख्त खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। तो इस तरह से ना मैं किसी को इस ईद पर मुबारकबाद दूंगा और न किसी की मुबारकबाद लूंगा। इस मामले में मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप किसी और मौके पर मुझे किसी भी किस्म की मुसलमानों की किसी खुशी के मौके पर आप जो है मुझे मुबारकबाद देंगे, मैं ज़रूर ज़हे नसीब ये जो है उसकी उनकी मुबारकबाद कबूल करूँगा। लेकिन इस मौके पर मैं न किसी की मुबारकबाद लूंगा, न किसी को मुबारकबाद दूंगा। ये मेरा मौक़िफ़ है। मैं सख्त नाराज़ हूँ। जी ठीक है, आप जी आप मार्कोनी फरमाइए। साहब फरमाइए। जी जी बहुत शुक्रिया। जी, जी मुबारक तो पहले आपकी तरफ से आई, उसके जी जी जवाब में मैंने मैंने कहा कह था दिया। जी जी। जी। जी जी नहीं चले कोई बात नहीं। नहीं असल में मेरा मौक़िफ़ मैंने बताया क्योंकि मेरा हाँ जी हाँ अपना जी, जो भी मौक़िफ़ है मेरे साथ है, मैं अपनी बात किसी पर थोप नहीं सकता। ये मेरा बिल्कुल मौक़िफ़ जो है बिल्कुल मैंने बता दिया। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा जो क्योंकि ये सवाल है, मैसेज जाना चाहिए ना। देखें असल में क्या है, हमें सोचने का कभी मौका दिया नहीं गया ना। हमारे ज़हनों पर, हमारे आसाब पर जो मुल्लाइयत या मज़हबी पेशवाइयत का जो है जो जो धौंस रही है, इस धौंस ने कभी हमें सोचने का मौका नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया कि हम अपनी जो है अपनी जो चली आ रही जो परंपरा से उसे सरेमुँह भी हम इन्हराफ नहीं कर सकते। हमें ऐसा बताया गया। लेकिन ये बगावत का जो है ज़माना है ना, हम हर चीज़ को परखेंगे, हम अपनी बुनियादों पर अपनी अक्ल की रोशनी में एक-एक चीज़ को देखेंगे, जाँचेंगे, परखेंगे। अपनी अक्ल से जांचने परखने का काम अगर मोमिन करने लगें तो वाकई पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंकलाब आ जाएगा। ये मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ये सोच आए, उनको मैं जगाना चाहता हूँ मैं। मेरे नज़दीक ये ईद नहीं है।
किसी भी लिहाज से नहीं है। जी जी जनाब। जी माफ बहुत करिए साहब। शुक्रिया। जी जी, मेरा सवाल भी आपकी बात की तायीद करता है। अब जो हमने सुना है अपने उलमाए इकराम से ऐसे मौकों पर, ईद के मौकों पर, तो एक वो कुछ बात करते हैं। सचवाला जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि इसका जिक्र कि कुरान में है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों, आप जो कुर्बानी करते हो, अल्लाह ताला को उसका ना तो खून पहुंचता है और ना ही गोश्त पहुंचता है, बल्कि वो तकवा है तुम्हारे दिलों में, जो एक खुदा का डर होना चाहिए, एक खौफ होना चाहिए। तकवा की काफी डेफिनेशन है, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता। तो ये तकवा पैदा करने के लिए है। लेकिन मैं आपकी बात की इसलिए आपसे तायीद करता हूँ कि आजकल तो लोग एक शो ऑफ करते हैं कि जी वो 5 गायें ले आए, वो 20 बकरे ले आए, वो 24 बकरे ले आए। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक घर में एक कुर्बानी इज सफिशिएंट, और ये सुन्नत है। इसको तो मौलवियों ने आजकल वैसे फर्ज ही करार दे दिया है। तो दूसरी बात ये है कि एक से ज्यादा जानवर, बहुत ज्यादा लोग जानवर खरीदते हैं जिनके पास पैसा है, सब कुछ है। तो ये जिक्र जो है कि अल्लाह ताला के पास ना तो खून पहुंचता है, ना गोश्त पहुंचता है, बल्कि तकवा पहुंचता है। इसका जिक्र सचवाला जी कोई कुरान में है? जी हाँ, कुरान में ये आयत आई है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ या अल्लाह के पास ना तो यानी ये इनका खून पहुंचता है, ना इनका गोश्त पहुंचता है। अगर कोई कुछ पहुंचता है तो जो है वो तुम्हारी तरफ से किया गया तकवा है जो उस तक पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अच्छा, ये असल में किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है। अब सवाल ये है कि अगर वाकई गोश्त नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, तो ये खून बहाते क्यों हो भाई? क्यों बहा रहे हो? ये भी तो है ना सवाल। जब न गोश्त पहुंचता है, न खून पहुंचता है, तो फिर आखिर ये खून क्यों बहा रहे हो? कोई पूछे इनसे, क्यों बहा रहे हो? ताकि तकवा इख्तियार करें। हाँ, क्या वाकई इससे तकवा होता है? कभी कभी आपने कभी किसी इसका नजारा किया कि इससे तकवा हो रहा है? आपको महसूस हुआ कभी? क्या झूठ है, कैसी कैसी बातें घड़ रखी हैं, कहां कहां से क्या क्या चीजें लाते हैं, और जो है उसको दीन का नाम देकर लोगों से मनवाते हैं, और लोग उसको पागलों की तरह मान रहे हैं, पागलों की तरह। ना कोई मंतिक है, ना उनके पास कोई इल्म है, ना कोई जो है उनके पास किसी किस्म की दलील है, कोई सबूत है, कुछ भी नहीं है। उनसे मनवाया गया, वो मान बैठे, और चल रहा है सिलसिला, दुनिया भाग रही है। अरे यार, जरा रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, गौर करना नहीं है, कुछ भी नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।